Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Army Public College Sialkot Kent online sport program. This is your English class and I am your subject teacher Ms. Fawzia Naz. Students, yesterday I had started with you people First Year at Harrow by Sir Winston Churchill. So First Year at Harrow by Winston Churchill, this is the picture of Sir Winston Churchill, and then we talked about the writer as well. That was what was his full name. That was Sir Winston Leonardo Spencer Churchill. He was one of the most influential personalities of the 20th century. Then I told you that he was the Prime Minister of United Kingdom twice, from 1940 to 1945, then 1951 to 1955. Then he played a crucial role in England's victory in World War II. He was well known as an army officer, as a painting artist, as a writer, and as a historian in history. As far as his education is concerned, he got his early education at Harrow. Harrow is an institution, a reputed, well-known institution in England. Then he got his professional education from Military College, Sandhurst. He had written many notable books. Among them are The Second World War, A History of English-Speaking People, and then autobiography. He also had written an autobiography about my early life, and First Year at Harrow is an extract from his autobiography, that is My Early Life. He was a wonderful orator as well, because of his emphatic words, because of his emphatic speeches. He was able to win the heart of the listeners. So he had several volumes of his speeches which were published, and he was knighted in 1953 with the title of Sir, and he got Nobel Prize for Literature in 1953. Okay, as far as the text of the lesson is concerned, in the very beginning, he shared his views about the system of examination. He said that when he entered into the entrance test at Harrow, then he had to appear into the inhospitable region of examination. Examinations उसके लिए क्या थे? Inhospitable region थे. Inhospitable region का क्या मतलब है यहाँ पे? कि वो उसके लिए जो examination था वो बहुत friendly नहीं थे, वो बहुत welcoming नहीं थे. He did not like the system of examination. और चर्चिल को ऐसा लगता था एज अ बॉय ऑफ 12 years old कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है दैट वाज अ ग्रेट टेस्ट फॉर हिम. So, लेकिन as a student for the next 7 years, it was in his fate to journey in that system of examination. ये हम सबके साथ था, ये आपके साथ भी है कि भी आपने जब आपने अपने जब एजुकेशन स्टार्ट की, then you have to appear into the system of examination. बच्चों को एग्जामिनेशन बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, क्यों? उनको लगता है कि भी उनको जो है वो चेक किया जा रहा है, उनको टेस्ट किया जा रहा है. When you have the fear that you are going to be tested, कि भी आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं, तो उससे क्या है कि बच्चे थोड़ा सा ऑफेंड होता है. सो अगले 7 साल विंस्टन चर्चिल को इसी सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन का सामना करना था, और इस एक सफ़र में उसने अपने अगले 7 साल गुजारने थे. सो चर्चिल का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मुझे जो है वो हिस्ट्री पसंद है, पोइट्री पसंद है, ऐसे राइटिंग पसंद है. सो आई शुड हैव बीन एग्जामिन्ड इन दीज सब्जेक्ट्स. लेकिन स्कूल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? एग्जामिनर्स को कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे? दैट वाज लैटिन एंड मैथमेटिक्स. अब जब लैटिन एंड मैथमेटिक्स वर गिवन मोर इम्पॉर्टेंस, डेफिनेटली दे वांट टू जज हिम, दे वांट टू टेस्ट हिम इन लैटिन एंड मैथमेटिक्स, जिसका डेफिनेटली एक ही नतीजा निकलना था कि ही वॉज अनएबल to suggest a satisfactory answer or to give a satisfactory performance in his paper. So चर्चिल का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उससे वो पूछा जाता व्हाट ही न्यू.
ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप भी ये चाहते हैं कि भी आपसे वो पूछा जाए जो आपको पता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। लेकिन कंप्लेंट क्या होती है कि जो एग्जामिनर हैं वो एक्सपोज करते हैं आपकी इग्नोरेंस को। सो हैज़ हैपेंड विद चर्चिल कि दे ट्राई टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, जो मुझे नहीं पता था या जिसके बारे में मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, उन्होंने उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, उसके बारे में जो है वो दे ट्राई टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस। And ऐसे system of examination में the result is definitely a failure, and as the will of the examiner prevails. उनको पेपर जो दिया गया वो लैटिन ही का दिया गया, और चूँकि ये एग्जामिनर उसको उसमें जज करना चाहते थे, तो कहते हैं कि चूँकि वो दे ट्राई टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, सो आई वॉज अनएबल टू डू वेल इन माई पेपर एंड आई definitely failed to give the satisfactory answer of even a single question. So what happened next in the text, that from here I have to continue today. So when I would have willingly displayed my knowledge, they sought to expose my ignorance. चर्चिल की कंप्लेंट क्या है, उसकी शिकायत क्या है? उसकी शिकायत ये है कि जब मैं तैयार था कि ठीक है आप चेक कर लें कि व्हाट आई नो, या चेक कर लें कि भी मुझे कितना पता है, तो उन्होंने ये क्या कोशिश की, उन्होंने ये कोशिश की कि वो जो मैं नहीं जानता था उसको एक्सपोज करने की कोशिश की, और ऐसे में आई डिड नॉट डू वेल इन माई एग्जामिनेशन। कहते हैं जो लैटिन पेपर मेरे हाथ में आया उसमें आई डिड नॉट नो द आंसर ऑफ इवन अ सिंगल क्वेश्चन। सो व्हाट ही हैड डन, ही रोट हिज नेम at the top of the page, अपना नाम उन्होंने लिखा, then he wrote question number 1, then put the brackets around, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता था। सो कहते हैं 3 घंटे मैंने वहाँ बैठना था। आई sat over there, my paper was very neat as I did not write even a single answer of any question. तो कहते पता नहीं कहाँ से several smudges and marks appeared on my paper, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पेपर पूरा गंदा हो गया। और कहते हैं कि एक सैड स्पेक्टेकल था फॉर मी, सो आई वॉज सो शॉक्ड टू सी सच बैड मार्क्स एंड स्पेक्टेकल्स एंड स्मजेस ऑन माई पेपर। और मैंने पूरे 3 घंटे जो है वो उन्हीं मार्क्स को देखने में गुजार दिए। कहते हैं 3 घंटे के बाद जो मर्सीफुल अशर था, अशर क्या है, दैट वाज द इन्विजिलेटर, ही केम ओवर देयर एंड देन ही कलेक्टेड माई फूल्स कैप, मेरा ये जो पीस ऑफ पेपर था उसको पकड़ा और ही कैरिड इट टू द हेड मास्टर्स टेबल along with the other papers. So headmaster कौन थे? That was Mr. Weldon. He was the headmaster. He was a man of prudence. He was a man not dependent on paper manifestation. He was a man capable of looking beneath the surface of the things. These were the remarks that Mr. Churchill had for Mr. Weldon, who was the headmaster of the institution. वो जो है वो बहुत एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो beneath the surface of the thing जो है वो किसी की भी ability को judge कर सकते थे। मतलब ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन, जो लिबरल थे, ओपन माइंडेड थे, और उन्होंने जो है वो मेरी जो जनरल एबिलिटी है उसको जज किया था। उन्होंने मेरे पेपर मैनिफेस्टेशन पे, जिस पे मैंने कुछ भी नहीं किया था बल्कि पेपर मैंने एक किस्म का गंदा कर दिया था, तो उसके बावजूद जो है he had given me admission into Harrow, और उसके लिए he had always had the greatest regard for him, कि मिस्टर वेल्डन को हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट देते रहे और उनके लिए उसके दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी। क्योंकि उनका ये ख्याल था, चर्चिल का ये ख्याल था कि भी उन्होंने पेपर मैनिफेस्टेशन पे जाते तो उसको एडमिशन हैरो में ना देते। सो पेपर मैनिफेस्टेशन पे तो वो गए नहीं, तो उसकी जनरल एबिलिटी को, चर्चिल की जनरल एबिलिटी को जज करते हुए मिस्टर वेल्डन ने उसको एडमिशन दे दिया। सो फॉर मिस्टर वेल्डन ही हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड। अब मिस्टर चर्चिल ने परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं दी थी, सो डेफिनेटली ही कुड नॉट बी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, and definitely he cannot be placed in the class in which there were the clever boys, in which there were the intelligent boys. So he was placed in the 4th division, and as the name of the list name list was placed on the school door, और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो लिखा गया था। तो मिस्टर चर्चिल कहता है कि मेरा नाम चूँकि बड़ा लंबा था, इट स्टार्टेड विद स्पेंसर चर्चिल, इट स्टार्टेड विद अल्फ़ाबेट एस। कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली अगर देखा जाए तो एस जो है वो उसके नीचे भी बहुत से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो इसके नाम के नीचे भी बहुत से नाम आने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि भी इनके नाम से नीचे जस्ट 2 नेम अपीयर इन द स्कूल लिस्ट, और वो 2 नाम भी डिसअपीयर हो गए बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज ऑफ सम
illness or some other cause, or Mr. Spencer Churchill name was at the bottom of the list, as he himself did not perform well. He was at the bottom of his education, of his learning level, and he was placed in the 4th division, and his name also appeared at the bottom of the list. This was unpretentious situation for Churchill. क्या थी unpretentious situation? Means मतलब he was not ready to accept this situation. That was unpleasant situation. ठीक है ना, मतलब उसको ये लगता था कि भी एक सिंपल सी सिचुएशन है फॉर हिम, और जो इस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन पे ही रिमेन देयर फॉर अ ईयर, एंड ही वाज नॉट प्लेस्ड, ही वाज आस्क्ड टू लर्न इंग्लिश instead of Latin and Greek, क्योंकि जो clever boys थे, जो intelligent boys थे, they had to learn Latin and Greek, and the dull students who did not perform well in the entrance examination, they had to learn only English, and they were considered dunces. Dunces means that they were considered like से बच्चे, बेवकूफ़ से बच्चे, foolish, unintelligent, dull students, they were considered. So these dull students, they had to learn English only. अब English उनको सिखाई किसने? That was Mr. Somervell, who was their English teacher. He was the most delightful man. He was charged with the duty of teaching the most stupidest boys. उनको क्या ड्यूटी दी गई थी? उनको ये कहा गया था ये जो stupid boys हैं, जो unintelligent boys हैं, जो foolish हैं, जो dull हैं, उनको क्या करना है? आपने इंग्लिश पढ़ाना है. But he knew how to do it. एज अ टीचर ही न्यू हिज ड्यूटी, ही न्यू कि इन स्टूपिड बॉयज़ को कैसे इंग्लिश पढ़ाना है. कहते हैं मिस्टर चर्चिल कहते हैं कि मिस्टर सोमरवेल ने इंग्लिश उनको ऐसे पढ़ाई जैसे आज से पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाई थी. उनका अपना एक सिस्टम था, वो इंग्लिश को ही यूज़ टू like divide the sentence into its components by using red, blue, black and green ink pen. वो एक लंबा सा सेंटेंस पकड़ते थे, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते थे, और किस तरह से डिवाइड करते थे? डिफरेंट जो इंक पेन वो यूज़ करते थे फॉर ईच कंपोनेंट. वो एक किस्म का सेंटेंस का तज्जिया करते थे, उसको ब्रेक करके उसको हर सेंटेंस को, हर पार्ट को उसको सेपरेटली जो है वो, जैसे उर्दू में हम कहते हैं फेल, फाइल, मफूल, हर तरह से उसको डिवाइड करके उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके फिर पढ़ाया करते थे, और उसकी प्रैक्टिस ये रोज़ाना किया करते थे. अब मिस्टर चर्चिल का ये कहना था कि उनको क्लेवर बॉयज़ पे एडवांटेज हासिल था कि वो इंग्लिश सीख रहे थे. कहते कि भी उसने सिर्फ 1 साल ये इंग्लिश नहीं सीखी है. ही रिमेन्ड इन द सेम लेवल फॉर 3 years, एंड फॉर 3 years ही लर्न द बेसिक ब्रिटिश सेंटेंस. कहता है उसको ऐसा लगा कि उसको ये जो बेसिक ब्रिटिश सेंटेंस है, ही गॉट इट इनटू हिज बोन्स, और इट वाज अ नोबल थिंग फॉर चर्चिल. और चर्चिल को लगता था कि उसको क्लेवर बॉयज़ के ऊपर जो है वो एडवांटेज हासिल हो गया है. कहता है जिन्होंने लैटिन एंड ग्रीक सीखी थी उनको प्राइजेस भी मिले, उनको डिस्टिंक्शंस भी मिली. क्यों मिली? उन्होंने बहुत खूबसूरत लैटिन पोइट्री की थी, उन्होंने पिथी ग्रीक एपिग्राम्स लिखे थे. यहाँ पे पिथी का क्या मतलब है कि बहुत शार्प किस्म के, बहुत वाइस किस्म के जो है वो उन्होंने जो है वो सेइंग्स जो हैं, एपिग्राम्स जो हैं वो लिखे, जिसके लिए उनको जो है वो डिस्टिंक्शंस मिली, प्राइसेस मिले. फिर कहते हैं कि भी लेकिन उनको in order to earn their livelihood, in order to earn their bread and butter, what they had to do, they have to come back to English. They have to learn English again. So at that moment Mr. Churchill did not feel himself at any disadvantage. उसको लगता था कि उसको इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है कि उसने 3 साल इंग्लिश सीखी, और इंग्लिश सीख के उनके साथ जिन लोगों ने लैटिन एंड ग्रीक सीखी उनको जो है वो दोबारा इंग्लिश सीखनी पड़ी. क्यों? क्योंकि अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए दे हैव टू कम बैक टू लर्न इंग्लिश. चर्चिल का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि येस ही वाज बाइस्ड टुवर्ड्स द बॉयज़ हु लर्नड इंग्लिश. वो फेवर करता था उन लोगों को जो इंग्लिश सीखते हैं. कहते कि भी हमें जो है पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए, बिकॉज दिस वाज द नेशनल लैंग्वेज, दिस वाज द लैंग्वेज विच दे शुड नो इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड. और लैटिन को एज एन ऑनर सीखना चाहिए, ग्रीक को एज अ ट्रीट सीखना चाहिए. और उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग इंग्लिश नहीं सीखते हैं
उनको पनिश करना चाहिए। आई वुड विप देम हार्ड। विप का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको एक चाबुक रसीद करूँगा। ही जस्ट मीन टू से दैट कि उनको पनिश करना चाहिए दोज हु ओवरलुक और जो है वो बॉदर नहीं करते हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज को सीखना, कि इट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो उनके लिए वो कहता है कि विदेश ही वुड लाइक टू विप देम। अगर हम इस लेसन को सम अप करें तो हमें क्या पता चलता है कि मिस्टर चर्चिल जो है इन द बिगिनिंग व्हेन ही वाज 12 years old ही वाज नॉट एट ऑल अ गुड स्टूडेंट। उसके लिए एग्जामिनेशन का एक फियर उसके जहन में था। ही डिड नॉट लाइक द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, दैट वाज अ ग्रेट ट्रायल टू हिम। और इसके बावजूद he was not a good student. He had to appear thrice in order to pass his military college Sandhurst entrance examination. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद he became a successful military officer, एक बहुत कामयाब पॉलिटिशियन और राइटर के तौर पे भी वो जाने गए। तो सिस्टम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दो के उसको वो पसंद नहीं करते थे, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, वो एक एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के लिए ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, लेकिन उसके बावजूद अपनी लाइफ में, अपने करियर में ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन। सो द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ फुल ऑफ ड्रॉबैक्स। दूसरा पॉइंट जो हमें पता चला कि भी यस, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन में ड्रॉबैक्स हैं जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड इट नीड्स टू बी मोर रिलायबल। And Churchill not only criticized the system of examination but also emphasized on the significance of learning one's national language। कि ये सिर्फ यही नहीं है कि हमारा सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन अच्छा नहीं है, बल्कि क्या है कि हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने मुल्क में जो है वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले अपनी नेशनल लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।